السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. جولائی اگست 2021 میں جو ٹیکس کلیکشنز تھیں وہ 850 بلین روپے تھیں. یہ کمپیئر ٹو جولائی اگست 2020 اس وقت 603 بلین تھی، یعنی کہ بہت ہی سائزبل انکریز ہوا ہے. اور یہ اتنا انکریز ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اپنی ٹیم کو. اور حالانکہ ان کی جو نیا جو آئے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، میرے خیال میں غالباً وہ 14 اگست کو آئے تھے، 24 اگست کو آئے تھے، بٹ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کلیم کیا اور انہوں نے کہا ہے ہم انفورسمنٹ میجرز بڑھائیں گے. ویل ڈسکس کہ یہ جو آئٹمس ہیں، یہ جو امپروومنٹ ہے، اس کے کیا از دس اے پازیٹیو سائن، از دس اے ریفلیکشن آف سم ادر پالیسیز، گورنمنٹ پالیسیز. اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہارون اختر خان صاحب ہیں اسکائپ پہ. ہی از obviously ویل نون ٹو ایوری باڈی. ہی از وہ ریونیو کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں نواز شریف کے وقتوں میں، اینڈ ہیڈ اے ویری میجر انپٹ ان انکریزنگ ریونیو. ہمیں ڈاکٹر اکرام صاحب جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ فرام دا یو ایس. وی آل نو ہی از ویری ویل نون اینڈ اے ویری ویل ریسپیکٹڈ فگر. ٹیکس ریلیٹڈ میٹرز میں کوئی بھی کمیشن ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ہی از آلویز اے ممبر. وہی شہزاد بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہی از اے ٹیکس لائر اور بہت مانے ہوئے ٹیکس لائر ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جو بزنس ریکارڈر کے چیف رپورٹر ہیں سہیل سرفراز صاحب. میں سہیل صاحب سے اس بات سے شروع کروں گی کیونکہ جمعے کو انہوں نے اٹینڈ کی تھی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اس کی میٹنگ، اور اس میں ایف بی آر چیئرمین آئے تھے. تو ہم ان سے صرف پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہا اور کیا وہ ریزنیبل ہے. جی سہیل صاحب. جی بالکل. ڈاکٹر اشفاق جو ہے وہ آئے، انہوں نے جو ہے بڑا کلیئرلی پی ایس سی کو بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 30 کمشنر اپیلز ہیں، جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 130 کمشنر اپیلز ہمیں چاہیے. اور اتنا زیادہ اماؤنٹ ان کو کتنے وہ ان کی سیلری کتنی ہوگی ٹو جسٹیفائی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ان کو ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو میں وہاں بھی جو ہے وہ ممبرز پورے نہیں ہیں. تو چیئرمین نے جو پی ایس سی کو بتایا ہے کہ ایک تو ہم سیکٹری لا کو ملے ہیں اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ ٹریبیونل کے ممبرز پورے کیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو ریونیو کلیکشن کرنی ہے وہ ہم ریکوری کریں گے ان کورٹ کیسز سے، انفورسمنٹ سے. اور ان کورٹ کیسز سے ہم نے جتنا بھی اماؤنٹ لینا ہے اس کے لیے فوری طور پہ مزید کمشنر اپیلز اور ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کے ممبرز کو جو ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو شوکت ترین صاحب نے جو 2 میجرز کہے تھے، ایک تھا جی تھرڈ پارٹی آڈٹ. کیا وہ لسٹ بن گئی ہے کیونکہ اگست ختم ہو گیا ہے، ستمبر شروع ہے، اور کیا آڈٹ وہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کے انہوں نے کمپنیز بتانی تھی وہ ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ ایف بی آر آفیشلز کا کہنا ہے کہ وہ لسٹ ابھی نہیں بنی. اوکے. دا سیکنڈ تھنگ ہی سیڈ واز اباؤٹ دی آرڈیننس کے آرڈیننس تاکہ نادرا کا ڈیٹا از شیئرڈ ود ایف بی آر. کیا وہ آرڈیننس کی کیا سچویشن؟ جی آرڈیننس جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں جو براڈنگ آف ٹیکس بیس کی کلوزز ہیں ان کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے. اور ایف بی آر کے علاوہ جو ہے وہ لا منسٹر ایف بی آر آفیسرز کا کہنا ہے کہ وہ بھی اس ڈرافٹنگ میں موجود ہیں. اور باقی آرڈیننس کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں ریلیف کے علاوہ براڈنگ کے میئرز ہیں، نادرا کے ساتھ ایکسیس اور جو سیکریسی کانفیڈینشیلٹی آف ڈیٹا ہے، وہ سب چیزوں کو دوبارہ سے ریویو کیا. اور میرے خیال میں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں پی آر کے اگر ہمیں پکڑیں گے، اگر ہم نے کوئی گھپلا کیا تو نادرا کے لوگوں کو جو ہے وہ جس پہ ایشوز ہوں گے، جس پہ نادرا جو ہے وہ. اوکے. آئی کم ٹو ہارون صاحب. ہارون صاحب بتائیے گا واٹ ڈو یو تھنک آف دس انکریز ان ریونیو دس ایئر؟ تھینک یو انجم. 3-4 چیزیں ان کوئک سکسیشن. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ around 45 to 50% growth in revenue is commendable. It's tremendous. اور جو بھی ایف بی آر کی ٹیم ہے who led this growth, ان کو میری طرف سے مبارکباد ہو. نمبر 2، آپ اس کو اب صرف ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے، اب آپ پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیے. کانٹیکسٹ اس کے پہلے 2 سال ایف بی آر کی پرفارمنس بہت ہی ڈسمل رہی ہے.
पहले साल तो नेगेटिव भी चली गई थी और एफबीआर की तारीख में नेगेटिव कभी नहीं हुई थी, और पिछले साल भी 4% पे खत्म हुई. सो इट्स अ लो बेस इफेक्ट, बट इन एनी केस 45 to 50% इज हाई. मेजर आप करते हैं एफबीआर को दो चीजों से. एक तो आप ये देखिए कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, जो 2018 में 11.3 या 11.4 पे छोड़ के गए थे, वो पिछले साल हालांकि 4.7 ट्रिलियन इकट्ठा हो गया है, but that's about 9.80 टैक्स टू जीडीपी रेशियो. तो क्योंकि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो नंबर्स तो आपके पास आएंगे, पर आपको ये देखना है कि जीडीपी के मुकाबले में आपकी टैक्स कलेक्शन मतलब है कि विदाउट टू मच एफर्ट, राइट. बड़ी इंपॉर्टेंट अंजुम, एक बात दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो पिछले एक साल में इन 2 महीने में डबल हो गई है, 90% to 100%, और 52 to 53% आपका जो टैक्स है वो विदहोल्ड हो रहा है एट इंपोर्ट स्टेज. तो उसका ही अगर आप डबल का 50% ले तो 50% ग्रोथ होती है. सो ये इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको आगे चलना है कि एफबीआर की अपनी मेहनत है, जरूर है, टीम अच्छी है, डायनामिक लग रही है मुझे, पैशनेट है, तो ये आगे कैसे लेके चलती है, सख्ती और करती है या सक्सेसेस को कैश इन करती है और उसको लेके चलती है, और जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करती है. Okay, just one quick question before I go to Dr. Ikram. हारून साहब ये बताइएगा आप कि पिछले साल हमारी ग्रोथ जो थी वो 4% थी, और उसके साथ हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो कोई मेरे ख्याल में ओवर 8% था. तो बेस्ड ऑन दैट, डू यू थिंक द कलेक्शन वी डिड, द 4.7 ट्रिलियन थी शायद, 4.7 ट्रिलियन वाज अप्रोप्रिएट? उस वक्त ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी उससे? बिकॉज द फिगर दैट गिवन वाज ऑन ग्रोथ रेट विच वाज मच लेस. आई थिंक 2% ग्रोथ रेट इन्होंने किया था, और इन्फ्लेशन भी इन्होंने इतनी हाई पे प्रोजेक्शन नहीं की थी. देखिए, पिछला साल जब मैंने कहा लास्ट 2 years I was slightly wrong, the first 2 years of this government, but this last year was okay, and that is where I'm saying their tax to GDP ratio went up from 9.3, 9.4 to 9.8. Okay. Now that is where the inflation and all those things come in. और दूसरा पॉइंट आप देखें कि 4.7 trillion in dollars is still about $29.5 billion. In 2018, अगर आप डॉलर के कन्वर्ट करें, दैट वाज $35 billion. सो डॉलर को लेके आप चल रहे हैं, तो आप अभी तक 2018 की रेवेन्यू से डॉलर में आप कम है, 20% कम है. सही, वेरी गुड पॉइंट. जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर इकराम आप क्या कहेंगे अबाउट दिस इम्प्रूवमेंट? जी, मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है. जी, आप चीजों को देखते हैं यानी न्यूयॉर्क में बैठकर, तो फिर आप 3 चीजों के बारे में इशारा कर सकते हैं कि इम्पोर्ट बेस्ड टैक्सेस तो दुनिया में एवरेज जो है उनकी वो 5 से 6% ही होती है अगर आपने इकोनॉमी को ग्रो करना है. अगर आप सारे टैक्सेस इम्पोर्ट स्टेज पर ले लेंगे तो हम तो वैसे ही अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे. जब लोगों के पास कैश नहीं होगा, आपको अभी सेल्स भी नहीं हुई, इनकम भी अर्न नहीं की है, और आप चाह रहे हैं कि हम आपसे सारा टैक्स पहले ही ले लें, तो ये जो बात है ये तो कई सालों से जो है हमारे एक ओवरऑल फ्रेमवर्क का मसला है. और डॉक्टर शफाक जो है वो बहुत इस मामले में उन्होंने खुलकर कहा है कि जी हमें तो रेवेन्यू को लेना है रिस्पेक्टिव के वो इम्पोर्ट से आता है या डोमेस्टिक सप्लाई से आता है, न्यू टैक्स पेयर से आता है या पुरानों से आता है. तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज करते हुए हमें देखना होगा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नए इम्पोर्टर्स, नई मशीनरी आई तो है, मगर इंडस्ट्री कहाँ पे है, और ग्रोथ रिटेल सेक्टर पे अगर हुई है ज़ाहिर कोविड के बाद, तो उसमें कीमतें भी बहुत बढ़ी हैं, तो क्या उसको हमने यूएस से कैप्चर कर लिया है कि नहीं कर लिया. खुद एफबीआर की साइट में सुबह 2-3 उसको खोलने की कोशिश की है यहाँ अमेरिका में, तो वो अभी तक जो है वो ओपन नहीं होती. एम्बैरेसमेंट कॉज होती है क्योंकि एक स्टोरी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिस्कल डॉक्यूमेंटेशन में ये सर्कुलर 5 जो फॉरेन एक्सचेंज की वाइटनिंग के बारे में जो 5 मिलियन तक आपको कुछ सवाल नहीं पूछा जाता, वो भी आपको पता है कि FATF का और उनका बहुत बड़ा कंसर्न है. तो वो मैं तो उस पर काम कर चुका था, साइट काम कर रही थी, बट सुबह ही मुझे जब मैं उठा तो उन्होंने मुझे बताया कि IVFT वालों में तो वो रिपोर्ट नहीं छपी क्योंकि उनकी साइट ही जो है वो उनसे एक्सेस नहीं हो रही. तो ये अगर हम फंडामेंटल चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को लाने में, लोगों को उससे कैप्चर करने में, और हमीद साहब वगैरह ने इस पर काफ़ी काम किया,
अपने जमाने जी, में। but डॉक्टर साहब, what do you think about the increase? आप तो कह रहे हैं कि ग्रोथ बेस नहीं होना चाहिए सिर्फ, जो कि हारून साहब ने भी कहा, but what are you trying to suggest now? जी, मेरा ख्याल है कि आप ब्रॉडर बेस जब तक नहीं करते हैं और लो रेट ऑफ टैक्सेस नहीं करते हैं तो ग्रोथ जो है वो तो असल चीज तो आपकी वो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो सारे बाकी इंडिकेटर्स को दुरुस्त करेगी। अब अगर ग्रोथ ही आपकी जो है वही कम रहेगी और आप सिर्फ नहीं डॉक्टर साहब, ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्ट 5% की हुई है इस साल के लिए, जी बेशक 5%, which is 1% more than last year. जी, तो बांग्लादेश तो कोविड के बाद 8-9% पे जा रहा है और अब लीडिंग डॉक्टर साहब, अभी तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन आई थिंक टू कंपेयर विद एनी अदर कंट्री। हमारी अपनी जो कारकर्दगी थी बिफोर, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि हमें ग्रोथ की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और ग्रोथ से अगर जो टैक्सेस में इजाफा हो उसके बारे में तवज्जो दे, ना कि सारे बिजनेसमैन को ये कहें कि जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो आपका टैक्स काट लेंगे। ओके, ऑलराइट, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी वही शहजाद भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? आप लॉयर हैं और ऑब्वियसली आपका मैं इनपुट चाहूंगी कि ये जो ऑर्डिनेंस कर रहे हैं कि नादरा और एफबीआर डेटा शेयरिंग हो, उसमें मेरे ख्याल में आपके बहुत सारे क्लाइंट्स वुड लाइक टू गो टू कोर्ट ऑन दैट, बट एक थिंकिंग ये भी है कि कोर्ट से जाने से पहले डेटा तो सारा एफबीआर के पास आ जाएगा, तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ not you know। जी शुक्रिया। देखिए, कोर्ट के पास कोई जाए या ना जाए, ये अब जरूरी हो गया है कि जो फाइनेंशियल डाटा है उसकी एक्सेस रेवेन्यू डिवीजन ऑफ पाकिस्तान को होनी चाहिए। अब देखें, कुछ 4 साल पहले जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डाटा का इशू आया था तो मुख्तलिफ बैंक गए थे, डॉक्टर कलाम साहब भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि वो आपने शेयर करना है डाटा। अच्छा, तो असल चीज डाटा शेयरिंग नहीं है। अब एक नया इशू बन गया, आपने लास्ट वीक देखा है, डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा है, जो हैकर्स ने अटैक किया है एफबीआर के डाटाबेस पे। अच्छा, उसी बेसिस के ऊपर कुदरत ने, जो जूनियर है डॉक्टर इशफाक साहब, इनके पास 226 तक टाइम है, चेयरमैन बन गए हैं, और जो सिटिंग चेयरमैन थे आसिम अहमद और मेंबर आईटी, उनको रिमूव किया गया है। तो डाटा शेयरिंग इशू नहीं है, असल है डाटा, जो क्लासिफाइड डाटा है उसकी आगे सिक्योरिटी का, कि वो आगे लीकेज ना हो। ये डॉक्टर इशफाक साहब इस चीज को बेहतर जानते हैं। इनके पास अगर तो ये कंटिन्यू करते हैं और अगला सेटअप भी यही आता है, तो इनके पास 4.5 साल है। 1936 दिन है, मैं देख रहा था, इनकी रिटायरमेंट है 12 दिसंबर 2026 तक। अच्छा, बंदे बुरे नहीं है, ये सिर्फ अपनी डायरेक्शन कर लें सीधी। अब देखें, सुहेल अहमद से लेके तारिक बाजवा, निसार अहमद, जैदी साहब, नौशीन अमजद और जवेद गनी, आसिम अहमद, इनमें आप एलिमेंट जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसको नहीं आप अवॉइड कर सकते कि उन्होंने कैसे किया। ये बंदा वाहिद है कि अगर ये चीज के ऊपर अड़ जाए तो चीजें चला सकता है, अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे। हमने भी यही सुना है कि ही हैज द कैपेसिटी टू मेक चेंज फॉर द बेटर। जी, और इसके लिए जरूरी है कि ये जिस तरह टैक्स पेयर्स को उनकी बेस बढ़ाने के लिए या कलेक्शन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जो इनकी काली भेड़ें अंदर मौजूद हैं उनको लटकाएं ना। वो जो होता है ना, इंक्वायरी, फिर आगे जवाब आ गया, फिर शो काज नोटिस, फिर फर्दर इंक्वायरी, और वो बंदा रिटायर हो जाता है। ये डे टू डे बेसिस के ऊपर ऐसी काली भेड़ों को एफबीआर से निकालें अगर इन्होंने डॉक्टर इशफाक का वर्जन देना है, वरना तो सुहेल साहब से लेके, सुहेल अहमद से लेके आसिम अहमद तक वो एक ही है। ए को उठा लें या बी को रख लें और सी को रिप्लेस कर दें, डी से बात एक ही है। ये अपने घर में सबसे पहले देखें कि इन्होंने क्या करना है। ये पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि अब तो कमिश्नर ने रिफंड के नाम के ऊपर ओपनली चीजें, सेल फोन और कैश अपने अकाउंट में, फ्रंट मैन के अकाउंट में मांगनी शुरू कर दी है। और आप देखें, एफटीओ के पास 95% जो कंप्लेंट्स हैं वो रिफंड की हैं। बट ये अशफाक साहब ने, अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अशफाक साहब ने यही कहा था कि हम ये खत्म रिफंड्स जो हैं हम तकरीबन सारे पे कर दिए। 90% कह रहे थे कि ज्यादा। इन्होंने कहा कि जितने जो पेंडिंग थे वो हमने पे किए, बल्कि इन्होंने ये भी क्लेम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एफटीओ के पास जो नंबर ऑफ वो कंप्लेंट्स है बिल्कुल खत्म हो गई। जी,
मैं सॉरी ऐड करूं, डॉक्टर इकराम साहब आपको क्लियरली बताएंगे कि एफबीआर झूठ बोल रहा है, और डॉक्टर इशफाक साहब कम से कम ये अपना आगाज झूठ से ना करें। अब तो रिफंड इशू पीछे रह गया, रिफंड के ऊपर पहले परसेंटेज थी को 10%, 15%, 5%, अब तो वो साथ गिफ्ट के ऊपर आ गए हैं कि ये चीजें भी साथ लेके दें। जी इकराम साहब, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि तरदीद? जी, मेरा ख्याल है कि मुझे ज्यादा इन चीजों के बारे में परसेंटेजेस का तो नहीं पता, बट ये जो लेगेसी है, बिल्कुल भाई शहजाद साहब ने सही कहा है, जो लेगेसी है कार्पेड रिफंड्स की वो तो बहुत पुरानी चली आ रही है, और डॉक्टर इशफाक साहब वाकई बहुत काबिल आदमी भी हैं। मैं तो खैर ये भी दावा कर सकता हूँ He has a good reputation, जी। मेरे शागिर्द भी रहे हैं और पढ़ने लिखने के काम में भी बहुत उम्दा है, और डायरेक्शन भी और फर्मनेस भी है, मगर भी वही शहजाद भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हमारे मुल्क में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं है, तो डेटा तो इनके पास विद होल्डिंग स्टेटमेंट से अरसा दराज से आ रहा है, मगर उस पर कितना अमल हुआ। OECD से डेटा आया 1,75,000 लोगों के बारे में, खुद वज़ीर आज़म मोहतरम ने फरमाया। और डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस की भी बड़ी बात कर रहे हैं ना, ये डेटा शेयरिंग हुई थी कोई 4-5 साल पहले हुई थी, 2019 में डेटा शेयरिंग हुई थी। अब वो FBR है जो वो कहते हैं कि नहीं, पहले ऑर्डिनेंस पास करो, जी राइट? They've accepted that, right? They accepted it. बिल्कुल उन्होंने ये माना। जी, एक जमाने में तो वहीं से नोटिस भी इशू हुआ करते थे। एक तो उन्होंने अपनी फील्ड ऑफिसर्स पे इत्मीनान का इजहार नहीं किया था और कहा था कि हम FBR के हेडक्वार्टर से कमिश्नर जो उस वक्त थे ऐसे थे या शायद चेयरमैन साहब के करीब थे, तो वहां से नोटिस भी इशू हुआ करते थे, और फिर पता नहीं वो नोटिस कहाँ चले गए। तो ये तो अली अरशद हकीम साहब के जमाने से लेके आज तक मेरा ख्याल है कि डेटा के बारे में, शेयरिंग के बारे में, उसकी नंबर के बारे में They have the information. सुहेल साहब ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ चले गए, तो क्या कि किधर चले गए? देखिए, बात ये है कि डेटा शेयरिंग जो है वो इनका ये सिलसिला तो बहुत दिनों से चल रहा है, अब सालों से। अब FBR ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वो तो हमने सिर्फ एनालिसिस के लिए दिया था और हमें नादरा में एनालिसिस करके नहीं दिया। नंबर दे रहे ना कुछ। जी हारून साहब, योर व्यू? आज जो मैंने 3-4 बातें जरूरी करनी है। जरूर। पहली बात तो ये है कि बजट में जो एक प्रॉमिस की गई थी कि ऑडिट जो है वो सवाए रैंडम बैलेटिंग के नहीं होंगे और कोई नोटिस नहीं आएगा, वो बाकायदगी से नोटिस आ रहे हैं, और उसी तरह जो 1 जुलाई 2021 से पहले आ रहे थे। नंबर 1। नंबर 2 जो था थर्ड पार्टी ऑडिट, उसके अंदर 2 महीने में अभी तक 0 प्रोग्रेस हुई है। वो जो थर्ड पार्टी ऑडिट, जैसे सुहेल साहब ने कहा, वो अभी तक वो जो थर्ड पार्टी को आइडेंटिफाई करना था ना, कौन सी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से, वही नहीं अभी हो सकी। वो जब चीज कोई करनी होती है ना, जो आपको पता है, वो ओवरनाइट भी हो सकती है। बट एनीवेज, मैं तो आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। आई लाइक हिम, ही इज डायनामिक, बट व्हाट ही प्रॉमिस्ड इज नॉट हैपनिंग। एंड 2 months are gone, which is what 16% of the year, right? 16-17% gone. अच्छा, थर्ड चीज जो है जिसको मैं ब्रीफली टच करूंगा, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट होगा जी। ये जो नादरा की इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है ना, ये really, I mean, people do not understand. People think that नादरा के पास सारी इंफॉर्मेशन है। नादरा के पास सारी FBR की यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। Okay. ये जो 4-5 साल पहले हुआ था कि 34 लाख का उन्होंने किया और उसके अंदर 6 बिलियन और $10 बिलियन आ जाएंगे, वो बिल्कुल गलत था। इंफॉर्मेशन सिर्फ एड्रेस के बेस थी। बैंक अकाउंट कितने खोले ये भी क्लियर नहीं होता कि जो बैंक अकाउंट का बायोमेट्रिक हुआ वो खोला या ना खोला। सही। However, what they need to do is to make a program, and FBR has the ability. Unfortunately, ये cyber attack हुआ, FBR के ऊपर बड़ी अभी people have lost trust. जी। But FBR has the ability to get the data from any source, from immigration regarding traveling data, from the banks. Now court case भी इनका settle हो गया आपस में, from the property dealers, from the real estate authorities, from WAPDA, from gas and all that. So FBR has to make a program
कि अपने इस्तेमाल की और अपने प्रोफाइल के जिस तरह के टैक्स पेयर को दुबई में टैक्स पेयर को ढूंढ रहे हैं वो करेंगे. FBR ने करना है, नादरा ने नहीं करना. माई लास्ट पॉइंट इज जी. वेरी इंपॉर्टेंट. जी जी. देखिए पाकिस्तान जो मुझे डर था कि बिकॉज ऑफ FTA1 एंड नाउ FTA2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना 70% tariff codes in the custom means तकरीबन 70% import is तकरीबन 0 to 5% almost duty free from China. इससे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा. इससे आपकी इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी. और पहले तो हम 6% GDP ग्रोथ के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम में फंसे थे. अभी हमारा 3 साल में पहले साल ग्रोथ शुरू हुई है एंड वी आर स्टक विद ए बिगर करंट अकाउंट डेफिसिट. This, for the first 2 months of this year, is $7.3 billion trade deficit, which translates into $44 billion अगर इसी तरह चलता रहा. इस तरह चलता रहा. सही. Which is as bad or worse than what we left in 2018. सही. तो अब उसका क्या कर रहे हैं? डॉलर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, रुपये की डिवैल्यू कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास कोई और तरीका नहीं. उससे इन्फ्लेशन होगा और मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू हो जाएगी और जो ग्रोथ आपको मिली है वो खत्म हो जाएगी. सो some serious thinking need to be done. This country needs industrialization. Not consumption. Consumption, industrialization होगी, अपने गुड्स बनाएंगे, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देंगे अनस्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को, तो ये मुल्क आगे चलेगा. इसलिए सस्टेनेबल नहीं है. आपने सुना था कि जी अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, अब जो ग्रोथ होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम होगी. 2 महीने ग्रोथ हुई है. लुक एट द ट्रेड डेफिसिट, लुक एट द डॉलर. आपका 4 महीने में डॉलर 153 से 152 से 167 तक पहुंच गया है. तो एज सीरियस इंस्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी जब तक इसको आप ठीक नहीं करते. ठीक. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. अब मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगी कि what they think should be the way forward. जी हारून साहब, I'll start with you. अंजुम, देखिए, we have a good team in FBR. People have a lot of expectations. अब डॉक्टर अशफाक साहब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी. I never got a chance to work with him directly, but indirectly उनकी रेपुटेशन थी. He is a man of great honesty and dynamism and all that. Okay. But up the buck stops at him. Now he has to perform, demonstrate. अब FBR चेयरमैन का बड़ा प्रॉब्लम होता है. मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मेरा FBR चेयरमैन आया 4 FBR चेयरमैन, जब तक वो अपनी मीटिंग्स डिफरेंट आउटसाइड FBR से वापस आते थे तो शाम को 5 बज जाते थे और 5 बजे के बाद फिर वो काम करते थे. तो इनका ऊपर प्रेशर पार्लियामेंट का होता है, मिनिस्टर्स का होता है, पॉलिटिशियंस का होता है, ब्यूरोक्रेट्स का होता है. बड़े प्रेशर होते हैं. हर कैबिनेट कमेटी में FBR चेयरमैन मौजूद होता है. सो नाउ सारा फोकस और अटैक जो होगा वो इनके ऊपर होगा. सो ये हैज टू ट्रेड केयरफुली. सख्ती जो टैक्स दे रहे हैं उन पे और ज्यादा सख्ती ना करें, बिकॉज वो सख्ती बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे. अगर आप ह्यूमंगस डिमांड्स दे रहे हैं तो उसका कुछ नहीं बनेगा. इट विल लैंड अप इन द कोर्ट. आप डिमांड दें और सेटल करने की कोशिश करें, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंकरेज करें, और जो टैक्स नहीं दे रहे उन पे जितनी मर्जी इन्फोर्समेंट करनी करें. दैट इज वेयर ही नीड्स टू इंक्रीज इन इन्फोर्समेंट. ओके ओके. डॉक्टर साहब, आप व्हाट आर योर सजेशंस? मैं हारून साहब से बिल्कुल मुत्फिक हूँ और यही कुछ लिखा भी मैंने, और इस पे जो डेलिब्रेशन भी बहुत ज्यादा आजकल हो रही है कि वाकई हमें जो है वो एक जीरो टॉलरेंस तो दिखानी ही पड़ेगी उन लोगों की तरफ जो नहीं करते, क्योंकि बर्डन फिर पास ऑन हो जाता है उन लोगों पर जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं. और उसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुझे ख्याल है कि जहां तक डेटा प्रोटेक्शन और उसकी यूटिलाइजेशन का मामला है तो उनके पास एक जमाने में शायद जब तारिक बाजवा साहब थे और उस वक्त हारून साहब भी होंगे यकीनन, तो उनको ह्यूमन रिसोर्स वालों के पास डेटा साइंटिस्ट आए थे जो एनालिसिस कर सकते थे. फिर देखते हुए कहाँ वो चले गए. पराल में कितनी आपको पता है कि डीप रूटेड करप्शन के इश्यूज हैं, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए आप जो है रन कर रहे हैं अपने डेटा को. लाइसेंसेस का इशू है, उसकी अपडेशन का इशू है. बट इकराम साहब, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो डेटा इंटेग्रिटी जो हैकिंग हुई थी FBR की, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन को तो हटा दिया था, विच इज अप्रोप्रिएट, बट पराल जो स्पेसिफिक उस पे डील करता है वो अभी तक वही है.
उनका जो सीईओ पराल है वो भी हट गए हैं, लेकिन उसको एफबीआर ये कह रहा है कि उनका प्रायर नोटिस था और वो अपना जो है वो टर्म खत्म करके गए हैं, और मेंबर आईटी को रिप्लेस करके एक जो इंटरनल ऑडिट के डीजी थे उनको अपॉइंट किया गया। they've done the right thing. जी सॉरी जी पर्सनली की है, मगर जो आजकल की दुनिया में डेटा सिक्योरिटी के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं हमें किसी थर्ड पार्टी से उनको करवाना चाहिए। और आज की आपको पता है कि मैं यहाँ बैठे हुए भी जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो शायद यहाँ आईआरएस वाले भी सुन रहे हो कि डॉक्टर साहब अमेरिका में जाकर कोई बिजनेस तो नहीं करते हैं, तो यहाँ इस हद तक वो आपको वॉच कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। तो आईआरएस को आपके, अगर आप यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेल वो आपका रह जाता है। तो हमें एक बहुत ही जो है वो कम्प्रीहेंसिव मेरा ख्याल है कि आईटी की तरफ इस पे एक इसी आपको याद होगा बिजनेस ऑर्डर में एक बहुत लंबी सीरीज भी लिखी थी ऑटोमेशन एंड कलेक्शन पे, अब क्या उसके चैलेंजेस हैं। तो अशफाक साहब की हमारी बेस्ट विशेज हैं, वो तो वैसे भी मुझे अजीज भी हैं, मैंने उनको जी, बट आई थिंक कंपेयरिंग एफबीआर विद आईआरएस और ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू दैट लेवल अभी तो बहुत देर है डॉक्टर साहब जी। वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी वही शहजाद भट्ट साहब आप क्या कहोगे? जी लास्ट से शुरू करता हूँ। सीईओ पराल अगर टर्म पूरी कर लिया, मेंबर को रिप्लेस कर दिया, चेयरमैन को, एक यूडीसी एलडीसी है इंस्पेक्टर, अगर मुझे 10 रुपए में एक किसी की रिटर्न शेयर करता है, आप उसको ना सिर्फ रिमूव करते हैं सर्विस से बल्कि 6 महीने की जेल है। तो अगर आसिम अहमद पहले वो थे फॉर्मर मेंबर, आईटी वो थे पीछे, फिर उसके बाद नए मेंबर और सीईओ पराल, इन तीनों को साथ पनिश करना चाहिए कि इन्होंने क्यों एफबीआर और सारे टैक्स पेयर के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया है। अभी हारून साहब ने जो बात की है वो इशू है कि डायरेक्ट टैक्सेस आप डिमांड निकाल देते हैं 1 बिलियन की और 10 रुपए उसमें से रिकवर नहीं होते। उसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन में आप हारून साहब इवन डॉक्टर इशफाक पे कर रहे हैं, और जो करंट या एरियर की डिमांड है वो डबल डिजिट में नहीं जाती परसेंटेज वाइज टोटल बजट का, ये लेस देन 10% है। तो इस चीज का क्या फायदा, आपने इतनी मशीनरी बनाई है और सारा कुछ अगर विद होल्डिंग से आ रहा है। आपने कहा प्रपोजल दें नॉन फाइलर और फाइलर के लिए आप इतना गैप रखें, जैसे कुछ साल पहले सेल्स टैक्स में था तो वो 3% तक एडिशनल टैक्स पे करते थे। सही है। अभी इस बजट में हारून अख्तर खान के वक्त में था, राइट, जब ये थे। जी आई एग्री। आप देखें ना, वो टैक्स वालों का डर कोई नहीं है, लेकिन जब आपके 10 रुपए कट जाते हैं ना वो तकलीफ देते हैं। बट सर डोंट ऑल्सो फॉरगेट कि ये जो एमनेस्टी स्कीम भी जो खान साहब 2 दे चुके हैं, मगर ये एमनेस्टी स्कीम भी जो है ना, ये जो फाइलर है उसके खिलाफ होती है, बिकॉज ही और शी कंटिन्यूज टू पे द पेनल्टी। खान साहब और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको अक्ल जो है ना 2024 में आएगी, एमनेस्टी से मुतल्लिक अभी नहीं आ सकती। अब आखिरी मेरी प्रपोजल है, इस बजट में इन्होंने जितने डॉक्यूमेंटेशन मेजर्स थे वो सारे बर्बाद कर दिए। आप विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजन को जीरो ना करें, चाहे फाइलर है, आप 0.1% कर लें, लेकिन हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर ऑटोमेटिकली सिस्टम कर लेगा जब आप 0.1% भी किसी सिस्टम में डिडक्ट करवा रहे हैं। और इसी तरीके से जो मिनिमम टैक्स का रेट है, अगर नॉन फाइलर है तो आप उसको एटलीस्ट 1.5% ओवर एंड अबव चार्ज करें। ओके हारून साहब, बिजनेस बढ़ा दें। जी हारून साहब, आई लेट यू हैव द लास्ट वर्ड, बिकॉज ये जो है फाइलर और नॉन फाइलर का एक इसमें जो एक कंसर्न थी, एंड इट वाज cited by a very senior member of the government to me. मैं उनका नाम नहीं लेती, उन्होंने इजाजत नहीं दी हुई आई सपोज, बट वो कहते हैं कि ये कैसा मुल्क है जो नॉन फाइलर रहने की ऑप्शन देता है बाय मेकिंग देम पे डबल द रेट। तो अगर आप इस पे कोई देखिए अंजुम, मैं तो हमेशा ये समझता हूं कि ग्राउंड रियलिटीज के लिहाज से चलना चाहिए। अगर आप नॉन फाइलर को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते इमीडिएटली या ग्रेजुअली करना है, तो डोंट लेट द नॉन फाइलर गेट अवे स्कॉट फ्री विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो दैट इज वेयर इट इज। और शहजाद भट्ट साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि जब उसको 3% या 4% एक्स्ट्रा देना पड़ता है ना, तब उसको पिंच करता है, उसको तकलीफ होती है। और उस तकलीफ से आपने देखा है कि आप ऑटोमेटिक जो टैक्स पेयर्स लिस्ट है वो कितनी बढ़ रही है, कितनी आपके फाइलर्स बढ़ रहे हैं।
ये 7 लाख से कोई मेरे ख्याल 5 साल 6 साल में 30 लाख से ऊपर चले गए इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फाइलर एंड नॉन फाइलर। तो ये कंटिन्यू करें, जब आपकी ऑडिट स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जब आपकी डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एबिलिटी हो जाएगी लेने के, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करें। एक चीज आपके हाथ में है नहीं एंड यू ट्राइंग टू गो फॉर परफेक्शन, वो नहीं होगा, आपका रेवेन्यू पे इफेक्ट होना शुरू होगा। तो आई एग्री कि उसको चलाते दे, उसको और पेनलाइज करें, बिकॉज यू गॉट टू पेनलाइज द पर्सन हु इज नॉट फाइलिंग द टैक्सेस, यू गॉट टू डू दैट। उसके लिए कोई रहम करम ना हो। हाँ, उसको ऑप्शन दी भी है कि अगर आपको हमने हायर टैक्स लगा दिया है नॉन फाइलर पे, आप फाइल करते हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा। ये ऑप्शन हमारे जमाने में हमने दे दी थी, तो फिर उसके लिए किसी किस्म की सिंपैथी नहीं होनी चाहिए इसके बाद। Okay, fair enough. Suhail Saab, I'll end with you. We've got just 1 minute left. ये जो डॉक्टर अशफाक जो कह रहे हैं, ये कितना डुएबल है आपके ख्याल में? उनकी जो विजन है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, ये जो बार बार ये चीज कह रहे हैं चेयरमैन साहब कि हम ओवर इन्फोर्समेंट जो है और इन्फोर्समेंट मोड में हैं, हम ठीक वो है। करेंगे। इन्फोर्समेंट मोड जो कि अब हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है, उसमें भी इश्यूज हैं। वो जो हैं नोटिसेज अभी तक Exactly. जा रहे हैं, हारून साहब ने Customs group बताया जो है अभी उनका वो नहीं तो पता अलग बात है ना। जी। नोटिसेज जा रहे हैं, कस्टम ग्रुप आप कह रहे हैं कि उनके पास कमिश्नर्स नहीं है। जी, कमिश्नर अपील्स बिल्कुल उनकी शॉर्टेज है, नहीं है। तो ये जब तक जो है ये सारा कुछ ठीक नहीं होगा। खवातीन हज़रात, आपने सुना, आई थैंक ऑल माय पैनलिस्ट्स, आपने सुना कि वो सब ने यही कहा है कि बहुत खुशाइन बात है कि आपके 850 बिलियन रुपए हो गए हैं पहले 2 महीने में, बट दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ कंप्लेसेंसी, और उसकी वजह यह है कि जीडीपी ग्रोथ के हिस्से उसको करना चाहिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, दैट इज द मेजर क्रिटिकल थिंग। एंड द अदर थिंग इज दैट tax is something that is collection is rising, क्योंकि वो इन्फ्लेशन जो आपके और मुझ पे पड़ रही है, इन्फ्लेशन, उस पे टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं। जो हमारा जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है। बट जैसे कि हारून साहब अगेन, उन्होंने जो कहा था कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स जो हमारी कलेक्शन हुई है रुपीज में, दैट इज मच लेस देन द लास्ट ईयर ऑफ द PML Nawaz government. I'm not an apologist for PML Nawaz government, but I think that Haroon Akhtar Khan Saab as a advisor, a special advisor on revenue जो थे, इन्होंने काफी मेहनत की थी, काफी हद तक इन्होंने एक लेवल पहुंचा दिया था टैक्स टू जीडीपी रेशो का, जो अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुई। The work is cut out for Dr. Ishfaq. Let's wish that he will be able to undertake that. But I mean, enforcement measures में सिर्फ उन्होंने 242 बिलियन रखा है फॉर द करंट ईयर, इतने को ज्यादा नहीं रखे, विच इज अ वेरी नॉर्मल, पिछले 2-3 सालों से यही रखे जो है ट्रेंड। नॉट दैट दे एवर अचीव्ड इट, बट वी विश द बेस्ट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।